کون کہہ رہا ہے جاگتے رہو؟ ہاں، خدا کہہ رہا ہے۔ ہمیں جگا کون رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے، کہتا ہے جاگتے رہو، تمہارا جو دشمن ہے وہ بہت ہوشیار ہے، بہت چلاک ہے، وہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، اس لیے اس کو چور کہا گیا ہے، اور چور کے آنے کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ چور ہے، وہ چرانے آتا ہے، اور اگر ہم سستی کا مظاہرہ کریں گے، کاہلی کا مظاہرہ کریں گے، وہ حملہ کرے گا اور قیمتی چیز چرا کر لے جائے گا۔ اور سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ہمارے پاس خدا کا کلام ہے۔ جب خدا کلام نازل کرتا ہے، اگر ہم اس کلام کو کیچ کر لیں، اگر اس کلام کو پکڑ لیں، اپنی زندگی میں رکھ لیں، اس پر غور کریں، اس پر دھیان دیں اور اس کو ریسیو کر لیں، اس کو ایکسیپٹ کر لیں، یہ میرے لیے ہے، میں ایمان سے کہتا ہوں، میں لکھ کے دے دیتا ہوں، آپ کی زندگی کے اندر اسی وقت آپ کی زندگی کے اندر معجزہ ہوگا، آپ کی زندگی کے اندر کام ہوگا، آپ شفا پائیں گے، آپ ہیلنگ پاور پائیں گے، آپ طاقت پائیں گے، آپ سور پائیں گے، اور خدا چاہتا ہے اس طرح ہم فتح مند زندگی بسر کریں۔ اور اگر واقعی ہی آپ فتح مند زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے ہونٹوں سے کیا کرنا ہے؟ اپنے ہونٹوں سے نہیں، بری باتوں کو روکنا ہے۔ وہ حملہ کرتا ہے۔ بیدار اور ہوشیار کیوں رہنا ہے؟ بیدار اور ہوشیار اس لیے رہنا ہے کیونکہ وہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے۔ تو حملہ کیسے کرے گا؟ ہمارے ہونٹوں کے ذریعے، ہمارے کانوں کے ذریعے، ہماری آنکھوں کے ذریعے، ہمارے ذہن کے ذریعے، ہماری سوچوں کے ذریعے، ہمارے دل کے ذریعے، خیالوں کے ذریعے وہ حملہ کرتا ہے۔ تو حملہ کسی وقت بھی کر سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص ہمارے گھر میں آ سکتا ہے، کسی بھی نیت سے آ سکتا ہے، کوئی بھی ٹاپک شروع کر سکتا ہے، کوئی بھی بات شروع کر سکتا ہے، اور اس شخص میں ہو کر بھی وہ ہم پر حملہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے تو آپ بھی کر دیں گے بیچ میں، تو کیا ہوگا؟ اس شیطان کو آپ کے گھر میں داخل ہونے کا دروازہ مل جائے گا۔ وہ داخل ہو گیا، اس کو بس چھوٹی سی سپیس چاہیے، زیادہ نہیں، تھوڑی سی جگہ چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے جو قبضہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ اتنی سی جگہ پہ تمبو لگا لیتے ہیں۔ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ تمبو تھوڑا سا آگے کر لیتے ہیں، تھوڑا سا کر، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے انہوں نے تھوڑا سا تمبو آگے کیا۔ اگلی رات کو پھر موقع تلاش کرتے ہیں، جب لوگ سو جاتے ہیں تھوڑا سا تمبو اور آگے کرتے ہیں۔ وہ پھر 2-4 دن بعد پھر موقع تلاش کرتے ہیں، تھوڑا سا تمبو اور آگے۔ ایک کہاوت ہے، اگر کھڑے ہونے کے لیے جگہ مل گئی تو بیٹھنے کے لیے لوگ جگہ بنا لیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ تھوڑی سی ہوشیار رہیں، بیدار رہیں۔ تھوڑی سی جگہ مل گئی اسے تو وہ پھر تھوڑا سا اور آگے، تھوڑا سا اور آگے، تھوڑا سا اور آگے، تھوڑا سا اور آگے کیا کرے گا؟ ہوتے ہوتے وہ پورے آپ کی زندگی پر قبضہ کر جائے۔ مت دیں اس کو موقع۔ ہوشیار رہنے کا مطلب اسے موقع نہیں دینا۔ حملہ کرتا ہے، وہ ہمارے خلاف بندوقیں لے کے نہیں آئے گا، ٹینک لے کے نہیں آئے گا، بام لے کے نہیں آئے گا، وہ ہمارے خلاف خیالات لے کے آئے گا۔ اور خیالات ایک ہی دن میں ہماری زندگی میں بے شمار گزرتے ہیں، جن کو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ ان میں کتنے ہی خیالات ایسے ہوتے ہیں جو ڈیول کی طرف سے ہوتے ہیں۔
वो चाहे हमारी अपनी ही जिंदगी में से हो या कोई शख्स आकर हमारे जहन में वो ख्याल डाल दे। अब जब वो ख्याल हमारे जहन में आ जाए तो फिर वो जाता नहीं है, उसको जगह मिल जाती है, उसको जगह मिल जाती है। वो ख्याल डाल देता है एक छोटा सा हमारे बदन के ऊपर डॉट देकर, जैसे एक छोटा सा डॉट हम कहते हैं खैर है, कोई बात नहीं, एक्चुअली वो नासूर बनता जाता है। फिर क्या होगा, एक दिन वो आपके जहन में डाल देगा कि आपको कैंसर हो गया है। अगर आप गौर नहीं करेंगे तो वो कैंसर बन जाएगा। कल भी हमने बात की कि जब तीर चलाए जाते हैं तो तीरों के आगे सहर लगाया होता है। जो तीर का आगे मुंह होता है उसके ऊपर सहर लगा होता है। इसलिए तीर जब दूर से चलाए जाते हैं और थोड़ा सा भी आकर बदन को टच हो जाए, बॉडी को लग जाए, तो वो सहर जो है वो फैलना शुरू हो, उसके थोड़ा सा ही जख्म कर। अगर तीर पूरे का पूरा लग गया फिर तो बहुत ही नुकसान हो गया, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी लग गया तो उस तीर के आगे जहर लगा होता है, उसको डिप किया जाता है उसकी नोक को जहर के अंदर, और अगर वो थोड़ा सा भी लग गया तो जहर फैल जाए। इसी तरह शैतान के जो तीर हैं, क्या लिखा है, ताकि उसके जलते हुए तीरों को बजा सको। तो तीर चलाता है, उसके तीर उसके ख्याल है, बस थोड़ा सा भी आ गया, थोड़ा सा भी आ गया और फिर उसका जहर फैलता जाएगा। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम किसी से सुनते हैं पर हमारी जिंदगी से वो निकलती नहीं, एक्चुअली वो नासूर बन जाती है और वो हमारी जिंदगी को इतना डिस्टर्ब कर देती हैं, हमारी जिंदगी बेकार हो जाती है। हम चाह कर भी उन चीजों को अपने दिल से, अपनी सोचों से, अपने ख्यालों से हम उन बातों को चाह कर भी निकाल नहीं सकते, भूल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो घर कर गई हैं, उसकी जड़ें गहरी हो गई हैं। जब कभी वो बातें याद आती हैं हम फिर परेशान हो जाते हैं। वो शख्स हो सकता है मर चुका हो जिसने वो बात की हो, जिसने वो ख्याल छोड़ा हो, जिसने वो तीर चलाया हो, और शैतान ने उसके जरिए से तीर चलाया हमारी जिंदगी में। हो सकता है वो शख्स ही ना हो, वो मर चुका हो, लेकिन उसकी बात आज भी तकलीफ दे रही है, नासूर बन चुकी है। इस तरह उसने हमारी जिंदगी को दुखी किया हुआ है, परेशान किया हुआ है, ताकि हम डिस्टर्ब रहें, परेशान रहें और खुदा की हुजूरी में आकर हम प्रेयर ना कर सकें, दुआ ना कर सके, हमद ना कर सके। कोई भी शख्स जिस दिन वो परेशान होता है उसको दुआ में बिठा, उसको दुआ नहीं करनी है, उसको प्रसश नहीं है, वो खुदा की हुजूरी में हमद नहीं कर सके। वो इसलिए बाइबल कहती है होशियार रहो, ना तुम्हारे कान में कोई बुरा ख्याल आए, ना बुरी बात सुनो, ना तुम्हारे मुंह से निकले कि शैतान को मौका मिले। और जहां पे ये लिखा उसका मुकाबला करो, तो इसका मतलब है सोए ना रहे, मुकाबला करना पड़ना है। मुकाबला करेंगे तो फतह पाएंगे। तो मुकाबले के बगैर बात नहीं बनेगी। तो मुकाबला जो है खुदा की हुजूरी में रह कर ही हम कर सकते हैं। हमें मुकाबला करना होगा। पर बाइबल क्या कहती है? बस थोड़ी देर तक उसका मुकाबला रहेगा, थोड़ी देर तक। क्या लिखा हुआ है? बस थोड़ी मुद्दत तक वो तुम्हें दुख दे सकता है, अगर मुकाबला जारी रखोगे वो भाग जाएगा। वाह! पर थोड़ी देर तो फिर मुकाबला करना ही पड़ेगा। बस उतनी देर तक मुकाबला करते रहें जब तक कि आप उसके हमलों पर मुकम्मल तौर पर गालिब ना हो जाए। फिर उसको एक दफा समझ आ जाएगी, इस शख्स से मैं जीत नहीं सकता, वो हारा हुआ है पहले। हमने कल भी बात की कि जब जीसस ने उसको हराया उस वक्त उसके पास इख्तियार था। आमीन।
ऐसा बाइबल कहती है। जब जीसस ने उसको हराया था उस वक्त उसके पास इख्तियार था, अथॉरिटी था, पर अब वो वाला शैतान नहीं रहा जिसका मुकाबला जीसस के साथ था। उसके पास इख्तियार था। अब जो इसका मुकाबला हमारे साथ है उसके पास इख्तियार नहीं है। वो हमारा बिगाड़ कुछ नहीं सकता उसको जब तक हम इजाजत ना दें अपनी जिंदगी में। अपनी जिंदगी में लोग खुद उसको एंटर होने देते हैं, उसको खुद जगह दे देते हैं, अपनी तरफ से उसको इख्तियार देते हैं। इख्तियार है, एग्री हो जाते हैं, वो एंटर होता है और जिंदगी तबाह करता है। इसलिए उसका मुकाबला करें और वो तुमसे भाग जाए। सबसे बुरा हमला उसका है उसके ख्यालात जो लोगों के ज़हनों में डालकर। इसलिए ऐसे लोगों के साथ गुफ्तगू करने की कोशिश करें जो खुदा के हैं। हर किसी के साथ गुफ्तगू करने की कोशिश ना करें, क्योंकि शैतान उस शख्स को इस्तेमाल करेगा आपके ऊपर जो ग्रेस है, आपके ऊपर जो फजल है, उसको बेकार करने की। फजल बेकार हो सकता है। कहाँ लिखा है? गलतियों 2 बाब 21 आयत। ऐसे लोगों के साथ राब्ता रखें जो खुदा के लोग हैं, उनके साथ गुफ्तगू करें। और ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करें जो शैतान के करिंदे हैं। वो कभी आपको अच्छी बात नहीं करेंगे, बल्कि वो शैतान की तरफ से कोई ना कोई ऐसा ख्याल आपके दिल में, आपके ज़हन में डाल जाएंगे, ताकि आपके ऊपर जो ग्रेस है, आपके ऊपर जो खुदा का फजल है, उसको बेकार कर सके। और जब ग्रेस बेकार हो गई, फजल बेकार हो गया, तो फिर आप उससे बच नहीं सकेंगे। पढ़ें क्या लिखा है? मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता, क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीले से मिलती तो उसी का मरना अब्स होता है। 21 नंबर गलतियों 2:21। फजल को बेकार लोग कर देते हैं, और पालूस कहता है मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता। उसका फजल बेकार ना करें। हम फजल को उस वक्त बेकार कर देते हैं जब शैतान के किसी भी करिंदे की बात को मानकर उसके पीछे चले जाते हैं। हमारी जिंदगी से फजल जाता है, बेकार कर दिया। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, जरूर है हम ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहें जो खुदा के लोग जब भी बात करेंगे वो खुदा की बात करेंगे, वो कलाम की बात करेंगे, वो तरक्की की बात करेंगे, वो पाकीज़गी में रहते हुए बात करेंगे, वो शैतान के खिलाफ बात करेंगे, बुरे कामों से बचने के बारे में बात करेंगे, वो अपने एक्सपीरियंस, अपने तजर्बे बताएंगे, गवाही देंगे, बशारत का काम करेंगे। लेकिन जो दुनिया के लोग हैं, जो शैतान के करीब हैं, शैतान ने उनको आपके लिए ही ठहराया हुआ है कि इस शख्स तक मैं कैसे पहुंच सकता, तो किसी न किसी के जरिए से आपके साथ आकर बात करें जो आपकी ज़िंदगी में ऐसा नसूर बन जाएगी, आप उस बात को अपनी ज़िंदगी से निकाल ही नहीं सकेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे सारी ज़िंदगी। उसका एक ही हल होगा, आपको माफ़ी मांगनी होगी। मैं ऐसे शख्स से दोबारा नहीं मिलूंगा, मैं उसे माफ़ करता हूँ, और उसको अपनी ज़िंदगी से रिमूव कर दें, वो बात चली जाए। आपको पता है बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने अपने दोस्तों से सुनी, मजाक में सुनी, पर जब उस वक्त सुनी तो उस वक्त भी ज़हन नापाक कर गई, और जब कभी आज वो याद आ जाए तो फिर ज़हन नापाक कर। इसका मतलब वो बातें अभी भी अंदर है, गई नहीं। 10 साल पहले सुनी थी, 12 साल पहले बात सुनी थी, उस वक्त भी नापाकी फैला गई, आज भी जब वो जहन में आएगी तो फिर दोबारा नापाकी फैला देगी। तो क्या हो रहा है? शैतान इस तरह काम कर रहा है, उसका नेटवर्क बहुत वसीह है, उसके लोग बहुत हैं। इसलिए
بیدار رہیں, ہوشیار رہیں, اس کا مقابلہ کریں, اور مقابلہ کرنے کے لیے پھر آپ کو ہتھیاروں کی ضرورت ہے. تو ہتھیار کون کون سے ہیں؟ کلام ہے, دعا ہے, اور کلام پہ زیادہ بات کی گئی ہے. سچائی کیا ہے؟ کلام. سچائی سے اپنی کمر کس لیں, یعنی اس کا مطلب ہے سچائی بولیں, جب بھی بولیں سچائی. سچائی کیا ہے؟ خدا کا کلام. پھر لکھا ہے خدا کا کلام جو روح کی تلوار ہے. پھر کلام کی بات ہو رہی ہے. تلوار کیا ہے؟ کلام. تو زیادہ تر جو ہتھیار ہیں وہ خدا کا کلام ہے. تو ہمیں کلام بولتے جانا چاہیے, بولتے جانا چاہیے, بولتے جانا چاہیے, تب ہم فاتح اور غالب زندگی بسر کر سکیں. تو جتنے ہتھیار ہیں وہ افسیوں کے خط کے لاسٹ 6 چیپٹر میں لکھے 10ویں آیت سے آگے ہتھیاروں کا ذکر ہے. تو ہمارے ہتھیار جو ہیں وہ روحانی ہیں, روح میں. یہ چھریاں, یہ کلہاڑیاں, یہ بندوقیں, یہ ٹینک, یہ ہتھیار نہیں ہیں ہمارے, سب روحانی ہیں. آمین. تو ہتھیار اپنے پاس رکھیں ایوری ٹائم. تو ایک جو سپاہی ہے وہ ہتھیار رکھ کے سو نہیں جاتا,